کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ شہر بھر میں یوم تقدیس قرآن منایا گیا۔ جگہ جگہ احتجاجی مظاہرے، جا بجا ریلیاں۔ علماء، اساتذہ، وکلاء، طلباء اور سیاسی رہنماؤں کی شرمناک واقعے کی شدید مذمت۔ ہر مقام پر گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ بھی کیا۔ یوم تقدیس قرآن شہر میں تاجر برادری کی جانب سے تقریبات اور احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ سویڈن کے خلاف سب سے بڑا مظاہرہ ریگل چوک ہال روڈ پر ہوا، جبکہ تاجروں نے سویڈن سے نفرت کا اظہار اور سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کیا۔ یوم تقدس قرآن منانے کے لیے شہر میں تاجر برادری کی جانب سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا اور احتجاجی مظاہرے بھی کیے گئے۔ سب سے بڑا احتجاجی مظاہرہ ریگل چوک ہال روڈ پر کیا گیا، جس کی قیادت صدر خدمت گروپ بابر محمود نے کی۔ صدر مسلم لیگ نون لاہور سیف الملوک کھوکھر، ملک وحید، مبشر جاوید، سید توصیف شاہ نے شرکت کی۔ تاجر قائدین نئی میر، میاں خلیل عبیر، سہیل محمود بٹ اور دیگر تاجر قائدین بھی شریک ہوئے۔ تاجروں نے وی لو قرآن کے کتبے اور فلیکسز اٹھا رکھی تھیں۔ حکومت بھی احتجاج کر رہی ہے، اپوزیشن بھی احتجاج کر رہی ہے، دینی جماعتیں بھی احتجاج کر رہی ہیں اور پورے پاکستان کی تاجر برادری احتجاج کر رہی ہے۔ میں تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا، اگر سارے احتجاج کرنا ہے ہم نے تو فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ سویڈن سے تعلقات کون ختم کرے گا؟ چیئرمین سپریم کونسل انجمن تاجران نئی میر نے کہا، مغرب مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتا ہے۔ سیف الملوک کھوکھر کا کہنا تھا کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی حرمت پر جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ کہ ہم کسی الہامی کتاب کو جلا نہیں سکتے، ہم کسی پیغمبر سے انکار نہیں کر سکتے، ہم کسی پیغمبر کی حرمت میں سلام نہیں کر سکتے۔ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اسی قرآن نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یہ ہمارے ایمان کی تکمیل ہے کہ ہمیں اس پر ایمان لانا ہوگا۔ مسلمانوں نے ہمیشہ ہر مذہب کو برابر کی حیثیت دی۔ ہم مذمت کرتے ہیں سویڈن سے اور عالمی سطح پر درخواست کرتے ہیں اس کی قانون سازی کی جائے اور جو ایسی حرکت کرتا ہے اس کو سزا دی جائے اور سویڈن کے خلاف پوری مسلم امت کو کھڑے ہو جانا چاہیے۔ تاجروں نے علامتی طور پر 1 گھنٹہ دکانیں بھی بند رکھیں اور حکومت پاکستان سے معاملہ اقوام عالم میں اٹھانے کا مطالبہ کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد حسن عبدالی، سٹی 42۔ ماضی کے ادھورے منصوبے نگران حکومت مکمل کرے گی۔ محکمہ مواصلات نے روڈ سیکٹر کے لیے 75 ارب روپے مانگ لیے ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے روڈ سیکٹر منصوبوں کے لیے 1 ارب سے زائد بجٹ کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ محکمہ مواصلات نے لاہور سمیت پنجاب بھر میں سابق دور حکومت کے بجٹ سے ڈراپ کیے گئے منصوبوں کے لیے 75 ارب روپے فنڈز مانگ لیے۔ نگراں حکومت فنڈز کے اجرا پر حتمی فیصلہ کرے گی۔ روڈ سیکٹر کے منصوبوں پر کام شروع کرنے کے لیے فنڈز کی ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں روڈ سیکٹر کے 137 منصوبوں کے لیے رواں مالی سال میں مزید فنڈز دیے جائیں گے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق روڈ سیکٹر کے منصوبوں کے لیے 1 ارب سے زائد کے بجٹ کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ پچھلے مالی سال میں ان منصوبوں کے لیے 24 ارب روپے مختص کیے گئے تھے۔ پچھلے مالی سال میں کم بجٹ اور منصوبوں کو ڈراپ کرنے سے کام میں تاخیر ہوئی۔ معروف بزنس مین گوہر اعجاز PIC میں بھی نئے سرائے کا تعمیر کرائیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے نئی سرائے کی سائٹ کا دورہ کیا، تعمیر جلد شروع کرنے کی ہدایات کر دی، جبکہ مہمان خانہ 120 روز میں تعمیر کیا جائے گا۔ اعجاز گوہر نے پنجاب انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں بھی جناح ہاسپٹل کی طرز پر نئی سرائے تعمیر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے PIC میں نئی سرائے کی سائٹ کا دورہ کر کے تعمیر جلد شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ محسن نقوی نے کہا ہے کہ سرائے میں تیمارداروں کے لیے ہر طرح کی بنیادی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ نئی سرائے کو اسٹیٹ آف دا آرٹ ہونا چاہیے، نیک کام میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ اس موقع پر خصوصی دعا بھی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ کے ہمراہ وزیر صنعت MS تنویر، اعجاز گوہر، چیف سیکرٹری IG پنجاب، چیئرمین PIC ڈاکٹر فرقت، پرنسپل PIC ڈاکٹر احمد نعمان اور ڈاکٹر عامر بندیشہ بھی موجود تھے۔ سرکاری اسپتالوں میں طبی آلات اور مشینری کو ٹھیک رکھنے کے لیے منصوبہ۔ سرکاری اسپتالوں کے بایو میڈیکل ایکوپمنٹ رجیم متعارف کرا دیا گیا۔ منصوبے کے لیے 40 کروڑ روپے مختص کر دیے گئے ہیں۔ سرکاری ہسپتالوں میں طبی آلات اور مشینری کو ٹھیک رکھنے کے لیے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کی جانب سے بایو میڈیکل ایکوپمنٹ رجیم منصوبہ متعارف کرا دیا گیا۔ بایو میڈیکل ایکوپمنٹ رجیم کے لیے 40 کروڑ روپے مختص کر دیے گئے ہیں۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے زیر انتظام ہسپتال بایو میڈیکل ایکوپمنٹ رجیم سے منسلک ہوں گے۔ بایو میڈیکل ایکوپمنٹ رجیم تمام ہسپتالوں میں مشینری اور آلات فعال رکھنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ کسی بھی ہسپتال میں خراب طبی آلات کو فوری آن لائن اطلاع موصول ہوگی اور کم سے کم وقت میں طبی آلات کو ٹھیک کر کے فعال کیا جا سکے گا، تاکہ
इलाज मुआवजे की फराहमी मुतासर न हो सके। रूडा के सफायर बे कमर्शियल मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त। 1 माह के अंदर 80% ज़मीन को कंसोर्शियम के हवाले कर दिया जाएगा। कंसोर्शियम में 1 बैनुल-अक़वामी और 10 लोकल कंपनीज शामिल हैं। रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का कमर्शियल मंसूबा सफायर बे तरक्की की जानिब गामजन हो गया। 2000 एकड़ पर मुहित सफायर बे कमर्शियल मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई। 1 माह के अंदर 80% जमीन को कंसोर्शियम के हवाले करने का फैसला कर लिया गया। डायरेक्टर कमर्शियल काशिफ कुरैशी ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 1000 एकड़ जमीन पहले ही हवाले की जा चुकी है। 1 माह तक मजीद 800 एकड़ अराजी कंसोर्शियम के हवाले कर दी जाएगी। ओवर 80% हम जमीन ऑलरेडी हैंड ओवर कर चुके हैं और उसका प्रोजेक्ट का जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि Q2 दिस ईयर फाइनेंशियल ईयर इंशाल्लाह उस पर काम शुरू हो जाना चाहिए और उसकी मेजर जितनी भी जो है उसके ऊपर जो उसका जो मास्टर प्लानिंग है वो एक सिंगापुरियन कंपनी ने बनाया है, उसके इनिशियल हमारे पास ड्राफ्ट्स भी आ चुके हैं अप्रूवल के लिए। कंसोर्शियम में 1 बैनुल-अक़वामी और 10 लोकल कंपनियां शामिल हैं। तमाम अंदरूनी डेवलपमेंट कंसोर्शियम की जिम्मेदारी जबकि बैरूनी डेवलपमेंट रोडा करके देगा। इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है और इसीलिए इस ग्लोबल कंसोर्टियम जिसमें प्रॉपर लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इस तरह का काम करने के लिए जानी मानी जाती है और वो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप करेंगी। वंस इट कम्स टू दी एक्सटेंशंस ऑफ द मोटरवेज एंड दी एक्सेस रोड्स जो जिसको हम प्राइमरीज, सेकेंडरीज एंड टर्शरीज रोड्स कहते हैं, वो फिर जो है ना वो रूडा डेवलप कर रही हो। सफायर बे मंसूबे में रोडा सेवरेज, बिजली, पानी और दीगर बुनियादी सहूलियात फराहम करेगा। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ बिसाम सुल्तान, सिटी 42 लाहौर। सरकारी स्कूलों की मॉनिटरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले एमईज़ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर दी गई। मॉनिटरिंग ऑफिसर्स 60 साल के बाद भी नौकरी कर सकेंगे। स्कूलों की मॉनिटरिंग के फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले एमएस की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का ऐलान कर दिया गया। निगरानी करने वाले 68 एमएस की मुद्दत मुलाजमत 60 साल मुकम्मल होने पर खत्म हो चुकी थी। ऐलान के बाद एमएस 60 साल के बाद भी मुलाजमत कर सकेंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मुलाजमत में तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 68 मॉनिटरिंग ऑफिसर्स की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद कंट्रैक्ट में इजाफा किया गया है। लाहौर से 2 एमएस मोहम्मद लतीफ और मलिक अब्दुल मजीद के कंट्रैक्ट में तौसी कर दी गई। महकमा दाखिला पंजाब ने जेल प्रिजन वैन्स की अपग्रेडेशन और एसी लगाने का फैसला कर लिया। नए एसी कैदी वैन्स भी खरीदी जाएंगी। दाखिला पंजाब ने जेल कैदी वैन्स में एयर कंडीशनर लगाने और इन्हें अपग्रेड करने का फैसला कर लिया। महकमा दाखिला पंजाब ने पुलिस से कैदी वैन्स रिपोर्ट मांग ली। महकमा दाखिला पंजाब ने नई एसी कैदी वैन्स खरीदने का फैसला भी किया है। नई एसी कैदी वैन्स खरीदने की समरी तैयार कर ली गई है। पहले से मौजूद कैदी वैन्स में नई सीटें और एसी लगेंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने कैदी वैन्स की अपग्रेडेशन का प्लान जेल रिफॉर्म में शामिल कर लिया है। कैदियों को ले जाने वाली गाड़ियों की खरीदारी और अपग्रेडेशन के लिए बजट महकमा खजाना देगा। शहरियों पर बड़ा बोझ डाल दिया गया है। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की ट्रांसफर फीस में 250% से ज़ायद तक का इजाफा कर दिया गया। 2000 सीसी से ऊपर गाड़ियों पर इनवाइस का 6% से 30% विद होल्डिंग टैक्स वसूल किया जाएगा। मोटरसाइकिलों और गाड़ियों की ट्रांसफर फीस में 100 से 250% से ज्यादा तक का इजाफा कर दिया गया। मोटरसाइकिल की ट्रांसफर फीस 150 से बढ़कर 500 रुपए मुकर्रर कर दी गई। 1000 सीसी गाड़ी और रिक्शा की ट्रांसफर फीस 1200 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी गई है। 1800 सीसी गाड़ियों की ट्रांसफर फीस 2000 से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दी गई है। 1800 सीसी से ज्यादा गाड़ियों की ट्रांसफर फीस 3000 से बढ़ाकर 10000 रुपए कर दी गई है। कमर्शियल गाड़ियों की ट्रांसफर फीस 4000 से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दी गई है। 1500 से 2000 सीसी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन फीस 3 से कम करके 2% कर दी गई। डायरेक्टर मोटर्स चौधरी आसिफ का कहना है ट्रांसफर फीस में 20 साल बाद इजाफा किया गया है। ट्रांसफर फीस काफी देर से स्टार्टिंग थी। एक्साइज टैक्सेशन तकरीबन 20 साल पहले जो रेट थे वही रहे हैं, तो अब मुख्तलिफ कैटेगरीज की जो ट्रांसफर फीसेज हैं उनको बढ़ा दिया गया। नए रेट्स के मुताबिक फिक्स टैक्स की बजाय फाइलर के लिए 2000 से 2500 सीसी गाड़ियों का विद होल्डिंग टैक्स 6% और नॉन फाइलर्स के लिए 18% मुकर्रर किया गया। फाइलर के लिए 2500 से 3000 सीसी गाड़ियों का विद होल्डिंग टैक्स 8%, नॉन फाइलर के लिए 24% कर दिया गया। फाइलर के लिए 3000 सीसी से ज्यादा गाड़ियों का विद होल्डिंग टैक्स 10%, जबकि नॉन फाइलर के लिए 3000 सीसी गाड़ियों का विद होल्डिंग टैक्स 30% कर दिया गया है। स्कूटर की 150 रुपया ट्रांसफर फीस थी जो 500 कर दी गई है। इसी तरह 1000 सीसी तक जो व्हीकल्स थी उसकी 1200 थी जो 2500 कर दी गई है। 1000 से 1800 सीसी 2000 थी वो 5000 कर दी गई है। अबव 1800 3000 थी वो 10000 कर दी गई। और कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं ऑल टाइप उनकी जो फी थी वो 4000 रुपया थी जिसको अब बढ़ा के 5000 कर दिया गया। 8 या ज्यादा सीटों वाली प्राइवेट गाड़ियों का टोकन टैक्स 2500 रुपए फी सीट की बजाय सीसी के हिसाब से वसूल किया जाएगा। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ अली साहिद, सिटी 42 लाहौर। लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इंतजामिया के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे।
सियासी दबाव के बायस कंपनी के डायरेक्टर, HR और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने इस्तीफा देने का इंदिया दे दिया। ज़राए के मुताबिक लेस्को के आला अफसरान ने इजलास के दौरान ओहदों से इस्तीफे देने की तजावीज़ दी हैं। डायरेक्टर HR ने इजलास के दौरान वर्किंग पेपर पे तहफ़्फ़ुज़ात और सख्त जुमलों का तबादला होने पर इस्तीफा देने का इंदिया दिया। ज़राए का कहना है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बुशरा इमरान ने भी ओहदे से हटाने की तजवीज़ दे दी है। लेस्को की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बुशरा इमरान ने चंद रोज कबल ओहदा छोड़ने का कहा था। दूसरी जानिब लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कायम मुकाम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए मार्केट से कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर जल्द लेस्को चीफ की तकर्री करने का फैसला किया है। अफसरान ने सियासी दबाव और कवानीन के बरअक्स इक़दाम उठाने पर ओहदे छोड़ने का इंदिया दिया है। इससे कबल लेस्को के CEO चौधरी अमीन ने इस्तीफा दे दिया था। गवर्नर पंजाब अली रहमान से अरकान कौमी असम्बली ने मुलाकात की। मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में MNAs नूरुल हसन, तनवीर चौधरी, मोहम्मद अशरफ, वलीद आलम खान, शबीर अहमद उस्मानी, मियां अब्दुल मनान, गजाली सलीम बट, मलिक ज़हीर इकबाल, इरफान नागरा समेत दीगर भी शामिल थे। अरकान असम्बली से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और उनकी टीम ने मेहनत से मुल्क को मुआशी तौर पर बेहतरी की जानिब गामज़न कर दिया है। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत एसएम तनवीर से ऐवान सनअत व तिजारत बहावलपुर के वफद ने मुलाकात की। प्रॉपर्टी, एक्साइज, हाईवे टैक्स और सनअतकारों को दरपेश मसाइल के हवाले से आगाह किया गया। मुलाकात में बहावलपुर इंडस्ट्रियल स्टेट के तरक्याती मसाइल और दीगर अमूर पर बातचीत। बहावलपुर इंडस्ट्रियल स्टेट को स्पेशल इकनॉमिक जोन का दर्जा देने के अमल पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत वासा हेड ऑफिस में इजलास। MD वासा गुफरान अहमद ने निकासियाब के इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। इजलास में DC कसूर अरशद भट्टी, एडिशनल कमिश्नर अब्दुल सलाम आरिफ और दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। DC कसूर ने फ्लड वार्निंग के तनाजुर में दरियाए सतलुज के हवाले से सूरत हाल और इंतजामात पर ब्रीफिंग भी दी। कोधम चॉकलेट अकेडमी में वर्ल्ड चॉकलेट डे की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। अहवाल जानिए इस रिपोर्ट में। चॉकलेट अकेडमी का आलमी दिन कोथम चॉकलेट अकेडमी में तकरीब का इनाकाद किया गया। चॉकलेट से मुख्तलिफ डिशेस बनाने का मुकाबला हुआ। अकेडमी के जूनियर बच्चों ने अपने फन के जौहर दिखाए। अकेडमी के बच्चों ने कप केक, डोनट समेत चॉकलेट से मजे की अशिया तैयार की, जिन्हें उस्ताद ने खूब सराहा। मुकाबले में हिस्सा लेने वाले बच्चों का कहना था, आज हमारा हुनर उभर कर सामने आया है, जो हमारे उस्ताद की मेहनत का नतीजा है। कुकीज़ बनाई, डोनट्स बनाए और बहुत ज़्यादा कपकेक्स बनाए और अब हमारा एक कंपटीशन चल रहा है, इंशाल्लाह मैं ही जीतूंगी। इंटरेक्शन का एक चांस मिला है लोगों के साथ, डिफरेंट माइंडसेट के लोग एंड सब कुछ। एंड हमारी टीचर ये बहुत स्वीट है, लाइक शी टॉट अस अ लॉट ऑफ स्टफ कि हमें किस तरह नहीं करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। मैं चॉकलेट बार बना रही हूँ और अब देखते हैं चॉकलेट कंपटीशन में इंशाल्लाह मैं जीत जाऊँ। तकरीब के आखिर में शुरका ने चॉकलेट से बनी लजीज और मीठी मसनूआत को मजे लेकर खाया और बच्चों को खूब दाद दी। कैमरामैन हारिद महमूद के साथ माहिदा वहीद, सिटी 42 न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहिए सिटी 42।